Good morning. In last lecture of industry law, we are study the last point. I think so. It is workman explanation of workmanship. उसके अंदर हम workman कौन होता है, employee होता है, and all खुद पर discuss किए थे. Okay. Then the next point is the layout section. We have 2Q layout section of TQ and SQ. Yeah, strict section. As per the SQ2Q, the stricts क्या होते हैं? Means the cessation of work by a body, a person, employee, and industry action combination of concurrent refuse under the common understanding of number person who are have been employed to continue to work to accept employment. वो IC body के बारे में डिस्कस कर रहा है जो स्ट्रिक्टली मीन द कैजेशन ऑफ वर्क ऑफ बाय अ बॉडी एक बॉडी की तरह है ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करते हैं एक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन कॉन्करेंट रिफ्यूज और रिफ्यूजल एंड द कॉमन अंडरस्टैंडिंग के अंडर वो लोग रहते हैं द इसेंशियल इसमें क्या क्या होता है दे मस्ट बी कैजेशन ऑफ वर्क दे सर द कैजेशन ऑफ वर्क मस्ट बी अ बॉडी ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री ओके द रेस्ट्रिक्ट मस्ट हैव बिन एक्शन इन कॉम्बिनेशन वो जो रहते हैं कॉम्बिनेशन इन एक्शन रहते हैं दोनों एक साथ रहते हैं और दे मस्ट बी कॉन्क्रेटिव रिफ्यूज और वो रिफ्यूज भी करते हैं रिफ्यूजल अंडर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑफ पर्सन who are have been employed continuing work let out the section as per 2 first let out means the temporary closing of place employment and supervision of work this refuse the refuse by employee continues employee numbers definition of let out has been 3 integrated there should be temporary closing of place employment or there should be supervision of work there should be refused the continuous employer employee number of person employed by the employer let out and opposites to strict a weapon to handle the employee to bring with employee Lockout is not closer. In lockout, employer clause does not integrate it. Layoff of section 2 में क्या बोला हुआ है means the refuse refuser या failure होते हैं ये refuser रहते हैं inability to employ account of shortage रहता है यानी shortage of employee के बारे में बोला हुआ है अब क्या shortage रहेगा कब refuse करेगा वो production करना अगर कोल कम है यानी कोयला कम है power of raw material it's not power or raw material are the short the accumulation of stock are short breakdown of machinery natural calamity ये जो लीगल इश्यूज है यानी अगर लीगली ऐसा कुछ हो रहा है तो ले ऑफ या लेट ऑफ कर सकते हो लोग ओके देन रिटेंशन ऑफ सेक्शन 200 retention means the termination to the employee of service from workman उसको terminate करना for any reason for whatever otherwise then the punishment influenced by way of disciplinary action does not include it voluntary retirement of the worker or the retirement by workman of reaching the age of supervision कैसे रिटायरमेंट देना चाहिए तो दो टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट है फर्स्ट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट खुद से रिटायरमेंट लेगा कि मुझे अभी काम नहीं करना है और सेकेंडरी तो कौन सा रिटायरमेंट वर्क बाय रीचिंग यानी उनकी एज करीब आती है रिटायरमेंट की उस वक्त रिटायरमेंट दिया जाता है टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूइंग इल हेल्थ क्लोजर सेक्शन देखो क्या है द परमानेंट closing down of a place of employment part thereof. Wages under Industrial Dispatch Act 1947. इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है wages mean all remuneration expensible terms of money. किसको wages बोलता है और remuneration जो पर्सन कोई भी चाहे वो बड़ा से बड़ा एम्प्लॉई हो कोई भी हो कैसा भी काम करता हो उनको मिलने वाली वे ऑफ मनी इज wages. फॉर एग्जाम्पल बॉस को क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है बट इसको वो लोग हम लोग क्या बोलेंगे वेजेस ही बोलेंगे इनकम हो रहा है रेम्यूनरेशन मिल रहा है क्योंकि वो पर्सन इज अ लेबर या which is would be the payable for workman काम करने वाले को मिलता है it is a term employment where fulfill in including the dearness of allowance traveling concession अब इसमें क्या क्या होता है ट्रैवलिंग अलाउ यानी तुम अगर ट्रैवलिंग से आ रहे हो तो ट्रैवलिंग अलाउंस डिनर अलाउंस यानी एक टाइम का खाना और यू आर अ बेसिक सैलरी देन रिमेनिंग आर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड बहुत सी बातें रहती है कैसे लेनी है उसके बारे में बोला हुआ है एवरेज पे यानी कैसा देना चाहिए फॉर द प्रोसीजर 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ इन केस मंथली पेड वर्कमैन
For the proceeding 4 complete week in case weekly paid of work. 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ यानी 3 महीने कम से कम कैलेंडर के तुम्हें कंप्लीट कंटिन्यू उनको वेजेस पेड करने ही है। अगर तुमने उसको जॉब रखा तो मिनिमम 3 महीने तुम्हारे इधर रहना चाहिए, उससे पहले तुम उसको निकाल नहीं सकते। और वीकली बेस पे रखे तो 4 वीक यानी 1 महीना तो भी तुम्हारे पास रहना चाहिए एज पर लेबर लॉ, एज पर वेजेस लॉ इन इंडस्ट्री एक्ट 1947। Okay, the average pay is respect of workman cannot be calculated under the aforesaid manner and shall be calculated as per the average of wages payable. So, for the calculating average pay, monthly wages shall be divided by 30. The principle of 26 working days is not being applied for determining the retirement compensation under section 25F. यानी जब 26 डे का वर्क रहता है, 4 डे संडे या 4 ऑफ डे होते हैं, लेकिन तुम्हें मंथली के हिसाब से पर डे कितना मिला अगर वेजेस पे मालूम करना है तो नॉट डिवाइडेड बाय 26 के 4 डे ऑफ होते, डिवाइडेड बाय 30 बिकॉज के वो 4 डे जो ऑफ रहते वो भी कैलकुलेशन इन वर्क होता है। ओके, then the next point is control industries, means any industry by control of which by the union has been declared by the center act. Okay, awards क्या रहते हैं, means the interim final determination of industry dispatch for any questions related to theory by any labor court. Okay, industry tribute or national industry tribunal including the attribute award made by under section 10। अब इसमें awards क्या होते हैं कि उसको मिलने वाली रेम्यूनरेशन में बेनिफिट्स देना, उसके बाद उसको बेनिफिट देना, अच्छे ऑफर्स देना एंड ऑल। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, any railway service, any transport service, carriage passenger service or good by air, any service in on connection with working of major port or dockyards. They are the public related service. Any section of industry established on this work of which safety of establishment है। अब ऐसी जगह जब बहुत वर्क होता है, पब्लिक लिमिटेड रेवेन्यू लेता है, हार्ड वर्क रहता है, तो सेफ्टी ऑफिसर इज दैट, इट इज अंडर इंडस्ट्री लॉ मस्ट। Any industry which supplies power, light, water to public, any system of public convention in situation, ऐसी situation में क्या करना है, like transport, banking, cotton textile, which approach the government may be satisfy the public emergency for public interest to require। वहाँ public emergency की जो चीजें वो रखना जरूरी है। मे बी कॉटन में तो आग लग सकती है तो फायर एक्सटेंशन वहाँ रहना जरूरी है। वाटर में ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, एक्सीडेंट कंपल्शन है, तो वहां पे सेफ्टी ऑफिसर्स होना जरूरी है एज पर इंडस्ट्रियल लॉ। देन अथॉरिटीज, द न्यू पॉइंट, अथॉरिटीज आर स्टार्टेड फ्रॉम हियर। वर्क्स कमेटी इन द केस ऑफ एनी इंडस्ट्री established in which 100 or more workmen are employed or have been employed on any day in the preceding 12 months. The appreciate government may be general or special. Special order required to employer consist work committee, consist of respected employer work and all. It shall be duty to work committee to promote measuring the securing preserving unit and goods relation between the employer and workman and is committed upon matter to their common interest. Okay, consulting officer, consulting proceeding officer means officer appointed under this act। कौन से एक्ट, सेक्शन 4 1947 of industry law, section 4(1), 11 and 12। consulting procedure means by the procedure held by consultant officer or board of council। अब ये जो ऑफिसर होता है कौन कंडक्ट करता है, बाय बोर्ड ऑफ काउंसिल। क्यों, गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड दैट ऑफिशियल गैजेट्स अपॉइंटमेंट सर्कुलर ऑफर चार्ज विद द ड्यूटी मैंडेटरी फॉर प्रमोशंस। अब जब प्रमोटिंग करना है किसी को तो प्रमोशन के साथ हमें गवर्नमेंटाइज होना होता है, और जब गवर्नमेंटाइज किया जा रहा है तो गवर्नमेंट का आदमी वहाँ होना जरूरी है, इसलिए काउंसिलेशन ऑफिसर इज मस्ट दैट। ही इज डिमांड टू बी द पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ IPC, Indian Penal Code। The duty of officer is maintain coordinator relationship between employer and workman। employer कौन होता है, ओनर ऑफ कंपनी, वर्कमैन काम करने वाला, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी।
इन दोनों के बीच में मेंटेन रहने वाला वो एक पर्सन रहता है। ये एक्ट अंडर 21 आईपीसी तुम्हें एस्टैब्लिश करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ द काउंसिल ऑफ ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इंक्वायरी इनटू डिस्पैच can enter the premise any establishment of giving responsibility notice dispatch in case of emergency. When the employer and employees are unable to settle the dispatch of workmen, refuse dispute the council office, conciliation office and intervention in bring about embellishing. जब भी एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयर के बीच में होगा तो कंसिलेशन ऑफिस जो इंडस्ट्री लॉ के हिसाब से बनता जाता है वहां पे उसको लिया जाता है और उस मुद्दे को उस कोर्ट में फॉलोअप किया जाता है। अब उसके फॉलोअप के स्टेप्स है वो कैसे, देखो स्टेप 1 पहले क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्पैच ऑफ रिलेटिव मैटर एंड टॉकिंग विद पार्टीज। देन दूसरा क्या है, if a settlement is arrived in course the council proceeding and the office will be sent to report to government with memorandum। यानी सेटलमेंट हो रही है तो सेटलमेंट की जाएंगी, उसकी रिपोर्ट लिखी जाएंगी और सीधा गवर्नमेंट को भेजी जाएंगी कि इंडस्ट्री सेटलमेंट विद लेबर एंड एम्प्लॉयर हो चुका है और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। Okay, if no settlement is there, the officer shall send a report to government with the settlement given fact of circumstance। यानी अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से उसको circumstance पढ़ेंगे। In deal with the reasons in opinion why the settlement could not be attained। The government will be concede the report of conciliation offers if it is the tribunal, the national tribunal, it may be make not good। Okay, a report the government should be submitted within the 40 days earlier by the conciliation officer। यानी एक बार ऑफिसर ने डिक्लेयर किया तो उसके 14 डेज बाद वो रिपोर्ट भेजना जरूरी है। विथिन द रिपोर्ट सॉरी within the approval the conciliation officer the time of submission and the report may be extended is agreed upon the written by all the parties of dispute। बोर्ड ऑफ काउंसिल क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ काउंसिल गवर्नमेंट में अपॉइंटेड द बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्री डिस्पेंशंस। यानी दोनों के होने वाले चेयरमैन और 4 मेंबर्स की काउंसिल होती है। ये किसके लिए रहती है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के झगड़े को खत्म करने। ओके, इफ अ पार्टी डज नॉट रिस्पेक्टेड विद द पेरिसेबल टाइम इन द गवर्नमेंट इफ फ्री even if there are the number of chairperson in absence in the board of can act। The quorum necessary is consists a meeting to two if the number of member are 3, the number of member is 3, the number of member are 5। The government may be an order to return the refuse in existing industry and dispatch of board। गवर्नमेंट के हाथ में अथॉरिटी होती है कि इस कमेटी को या इस चेयरपर्सन को या बोर्ड बॉडी को जिसे हम बोर्ड ऑफ काउंसिल बोलते हैं उसे वो डिस्पैच भी कर सकते हैं। Once the matter is refused of such authorities, government may prohibit any continuance of any streak of lockout। स्ट्राइक या लॉकआउट को फिर बाद में कैंसिल कर सकते हैं। यानी स्ट्राइक को शॉर्ट आउट करने का कैसा तरीका है ये इस लॉज में बताया हुआ है। ओके, देन द डिफरेंस बिटवीन कंसिलेशन ऑफर एंड बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंसिलेशन को कौन बनाता है, गवर्नमेंट कंसिल करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंडक्टेड बाय मेंबर ऑफ योर एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के मेंबर्स कौन होते हैं, वही लोग जो शेयर होल्डर होते हैं। द बोर्ड इंस्टेड द प्रोसीजर ओनली द रिफ्यूज द अप्रूवल गवर्नमेंट appropriate by government। Council offers to introduce the consultative procedure in dispatch when industry dispatch existing start। यानी जब बोर्ड गवर्नमेंट को रिजेक्ट करता है उस वक्त गवर्नमेंट काउंसिल को कंडक्ट कर सकती है कि ये लोग मेरा नहीं सुन रहे, तू उधर जाके दे। ओके, देन लाइक conciliation offer a board give by fact and conciliation is dispatch and effort may be settled in dispatch। Okay, in addition also make recommendation for the settlement of dispatch। The conciliation offer has been same power to admit or not a matter is conciliation, but the board does not have such power because the appropriation government refused it only such matter is in dispatch। Court of inquiry। The section 2F define court means the court in inquiry consists under the act the provision related to the court inquiry and similar to the board of counsel। Government may be appoint one or more independent person in court of inquiry for investigation and matter connected with industrial dispatch।
parties of the dispatch may also join or separately apply for refuse a court for counsel shall be inquire for reapplication. In short, वो क्या बोल रहा है, कोर्ट एंड इंक्वायरी के बीच में काउंसिल की बात को सुना जाएगा और काउंसिल जो पार्टीज को परफेक्ट काउंसिल जो प्रेजेंट करेंगी उसको कोर्ट पहले एक्सेप्ट करेगा, देन योर ड्यूटीज को इंक्वायरी करेगा. गवर्नमेंट में भी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट पर्सन फॉर कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन उस करने से पहले उस बंदे को अपॉइंट करने से पहले वो लोग क्या कर सकते हैं कि काउंसिल की बात को सुन सकते हैं. द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मे बी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मेंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन. एक या एक से ज्यादा रख सकते हैं और वो पर्सनली अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इवन दो कॉल ऑफ कोर्ट डज नॉट हैव एनी पावर टू गिव डिसीजन. अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बीच में किसी को बीच में पावर नहीं है कि वो इंक्वायरी को डिसीजन या डिसमिस करे. ओके, देन द सेकंड कोड इज लेबर कोड. अब लेबर कोड कौन होता है? द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बी कंसिस्ट द नोटिफिकेशन वन मोर लेबर कोड इंडस्ट्री ट्रिब्यूलेशन फॉर नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूलेशन. अब इसमें क्या होता है कि कोर्ट क्या करने वाला है कि तुम्हारी रिकॉर्ड्स को लेबर के तरीके से कैलकुलेट करेगा. वहां लेबर की बात को देखा जाएगा, उनके लॉज को फॉलो किया जाएगा, इसे अवार्ड्स कहा जाता है. इंडस्ट्री लॉ इट्स कॉल्ड अवार्ड्स. दिस एक्ट मेक्स बोर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिस्पैच मे बी रिफ्यूज टू द अथॉरिटी. पावर ऑफ लेबर कोड क्या है? इट इज प्रेसिडिंग ऑफर मे for purpose inquiry after giving the responsible notice enter the permission of establishment. He has the same power to vested the civil code under the code of civil procedure when trying suit, namely inform attendance any the person and examine him or oath. उसको और उसकी ली हुई कसम को एग्जामिन किया जाएगा. कॉम्प्लीमेंट द प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द मैटरलिटी. डॉक्यूमेंट्री को देखा जाएगा और मैटरलाइजर ऑब्जेक्ट्स को क्लियर किया जाएगा. इशू के ऊपर कम्युनिकेशन होगा एंड देन लाइक कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है वैसे लेबर की प्रोसीडिंग होंगी और उस प्रोसीडिंग को स्टडी किया जाएगा. ओके, अब अगर उसका जज होना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन ही और बीइंग द जज ऑफ हाई कोर्ट और ही हैज बीन द पीरियड ऑफ मस्ट लेस देन 3 years बीइंग द डिस्ट्रिक्ट जज. डिस्ट्रिक्ट जज के 3 साल निकालने होंगे या फिर हाई कोर्ट का करंट जज होना चाहिए. ऐसे दो में से एक ही लेबर कोर्ट का जज हो सकता है. He has also judicial officer in India for not less than 7. और किसी भी जुडिकल यानी जो जजमेंटल ऑफिस रहते हैं जहाँ पे लॉज के ऊपर फॉलो होता है वहाँ मिनिमम 7 ईयर तो उसने काम करना चाहिए ताकि उसको लीगल एसेस मैक्सिमम मालूम हो. He has been the presiding officer of labor court consist under the providing act state act and not less than 5. और जो प्रोवाइड स्टेट एक्ट है उसके अंदर 5 years उसने काम करना चाहिए. डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और द कंटिन्यू ऑफिसर प्रेसिडिंग ऑफिसर लेबर कोड ट्रेडिशनल. यानी कोई उनमें से ही किसी को नहीं ले सकते. लेबर का पर्सन लेबर कोर्ट्स में वर्क नहीं कर सकता क्योंकि उधर का ही बंदा उधर रहेगा तो एक साइड में डिसीजन हो सकता है. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूलेशन. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूलेशन according to the tribulation means the industrial tribulation under this March 1950 these acts are passed. Tribular shall be consist of one person appointed by the government who shall be or has been judge high court and Cosby district judge for no less than 3 years. जैसे इससे पहले मैंने बोला. पावर क्या रहती है इसकी? The proceeding of an industrial tribunal may for the purpose of inquiry entire the permission to establish to which dispatch the related after giving the responsible notice. Tribunal has the same power similar to civil court. उसको civil court की power होती है. Effort to the attendance any person to examine him and oath. वो क्या काम करेगा जैसे सिविल कोर्ट में किए जाते हैं. वो पहले शपथ लेगा, शपथ के बाद उसको उसकी गवाही को एग्जामिन करेगा और उस एग्जामिन को फॉलो करेगा. उसके बाद वो कौन से डॉक्यूमेंट जमा कर रहा है उस डॉक्यूमेंट की स्टडी होगी, सब प्रोसीडिंग. Okay, then issuing someone for examining and witness को देखा जाएगा. Examine all matter that all are relevant. Okay, he has all the power to vested the section 9328 IPC even the proceeding him demand for judging procedure. Okay, qualification क्या होनी चाहिए इस बंदे की? He has been the judge of high court या at least 3 year किसका डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का. Okay,
नो पर्सन शल बी अपॉइंटेड फ्रॉम कंटिन्यू ऑफ द ऑफिसर्स। अपने जो ऑफिसर्स रहेंगे, लेबर्स कोर्ट्स रहेगा, उसमें से हम किसी को नहीं लेंगे, वो जो रहेगा वो आउट ऑफ द योर कोर्ट रहेगा। ओके, इसके बाद है नेशनल ट्रिब्यूट। नेशनल ट्रिब्यूट सेक्शन 21 स्पेसिफिक नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूट कंसिस्ट अंडर द सेक्शन 7B सेंट्रल गवर्नमेंट विच कंस्टिट्यूट्स द नेशनल ट्रिब्यूट सेक्शन। अब नेशन के ही हैज बीन द जज ऑफ हाई कोर्ट। अब नेशनल लेवल का इसका जजमेंट और 2 सेशन हैविंग दे आर द कंडक्टेड क्वालिफिकेशन। जस्ट नेशनल का जो हाई कोर्ट का रहेगा वही वहां पे काम कर सकता है, वही कोई नहीं। इससे पहले जो था कौन सा, जस्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इसमें नेशनल हाई कोर्ट या फिर कोई भी यानी डिस्ट्रिक्ट के 3 ईयर वाला। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेशनल ट्रिब्यूट में ट्रिब्यूनल में कौन रहेगा, हाई कोर्ट का ही जज काम कर सकता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे द नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टेड अवार्ड्स। ओके, थैंक यू। Good morning everyone. In today's lecture we started industrial law. It is the second syllabus is conducting in this semester by me. हा से दुसरा सिलेबस आहे जो मी कंडक्ट करणार आहे। असे मी 2 सिलेबस घेणार आहे। आधी कुठलं लेक्चर झालं आपलं, बिझनेस एन्व्हायरमेंट, आणि आता आपण जो स्टडी करणार आहोत त्याचं नाव आहे काय आहे, इंडस्ट्रियल लॉ। आधी तुम्ही जो शिकलात ते काय होतं, बिझनेस लॉ। बिझनेसमध्ये कंपनी एक 1956, मग बिल बद्दल असेल, त्यानंतर बिल रिसिवेबल, बिल्स पेमेंट अँड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। त्याच्यासाठी काय लिगलिटीज आहे। आपण आज इंडस्ट्री ऍक्ट काय आहे, इंडस्ट्री कशी पाहिजे, त्या ऍक्टच्या अंडर लेबर वर्क कसं असेल, लेबरला किती सूट दिली पाहिजे, अँड ऑल थिंग आर डिस्कस टुडे। ओके, लेट स्टार्ट फ्रॉम द चॅप्टर नंबर 1. The Industry Dispatch Act 1947 is the first chapter. Okay, in this chapter we are study the introduction, objective of act, definition, then authorities, award under this section 16, 17, 17A, 18, 19, 20. आता हे अवॉर्ड काय आहेत, कोणाला दिले जातात, का दिले जातात, ह्याच्यावर आपण डिस्कस करू. देन सेटलमेंट ऑफ बोथ पार्टी, बायर अँड सेलर, हा सेक्शन कसा आहे अंडर द इंडस्ट्रियल म्हणजे सप्लायर. इंडस्ट्री म्हणजे कोण असणार आहे, एक असणार आहे सप्लायर आणि दुसरा कोण असणार आहे, कलेक्टर. ह्या दोघांमध्ये कसं सेटलमेंट होतं ह्याची आपण डिस्कस करणार आहोत. देन ले ऑफ कसं मेकिंग प्लॅन होतो, रिटायरमेंट, क्लॉजेस, लॅक ऑफ, इन शॉर्ट ब्रीफली स्टडी करणार आहोत आपण 18 पॉईंटची. फ्रॉम दिस द फर्स्ट पॉईंट इज द इंट्रोडक्शन. द इंडस्ट्री डिस्पॅच ऍक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1947. कधी, स्वतंत्र झाल्यानंतर इंडस्ट्री ऍक्ट आले. टू ब्रिंग अबाउट द पीस ऑफ इंडस्ट्री, हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई अँड एम्प्लॉयर. कोणामधलं रिलेशन बोललं नाही त्यांनी, बायर सेलर बोललं नाही, नो, एम्प्लॉई अँड एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर इज अ ओनर ऑफ बिझनेस, जो काम करून घेणार आहे, आणि एम्प्लॉई जो काम करणार आहे फॉर सॅलरी अँड वेजेस. In any organization without this concept, the successfully the industry may not be possible. Priority to 1947 Trade Dispatch Act 1920. त्याच्या आधी कुठलं होतं, 1929 ट्रेड डिस्कस ऍक्ट. Let's the study. Then the study of objective of the act. Promotion of measuring the security previous, preserving the unit of good relation between the employee and employer. काय ऑब्जेक्टिव्ह, एम्प्लॉई आणि एम्प्लॉयरच्या मधलं संबंध ठेवायचा आहे. देन इन्व्हेस्टिंग द सेटलमेंट इंडस्ट्री डिस्पॅच बिटवीन एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉईज. एम्प्लॉयर आर द वर्कमॅन अँड वर्कमॅन आर द वर्कमेन, अँड वर्कमॅन विथ द राईट ऑफ द रिप्रेझेंटेशन ऑफ रिलेशन ट्रेडर्स. म्हणजे त्याच्याबद्दलचे जे ट्रेड आहे तो कसा पाहिजे, काय केलं पाहिजे, तुमचे काय वर्कमॅन कॉम्पेन्सेशन फंड आहे हे त्याच्याबद्दल डिस्कस झाले पाहिजे, आणि ते डिस्कशन आर क्लॅरिफाय पाहिजे. प्रिव्हेंशन ऑफ इलिगल स्ट्रिक्स ऑफ लॉकआउट्स. आपल्याला असं काय वेळ आणायचं नाही की इलिगल स्ट्राईक्स तिथे येतील. रिलीफ ऑफ वर्कमॅन मॅटर्स, ले ऑफ अँड रिक्वायरमेंट. प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव्हिटी ब्रँडिंग. ओके, दिस ऑब्जेक्टिव्ह वी आर द लीड टू डाऊन इन द केस ऑफ वर्कमॅन डायमेन्शन T state versus Dymotic T state. Okay, the interpretation revenue of the following
dispatch among employer of different established in same industry come under the act. म्हणजे डिफरंट इंडस्ट्रीमध्ये ह्या ऍक्टच्या अंडर जे कॉम्पेन्सेशन असणार आहे फॉर एम्प्लॉयर एंड ऑल्सो एम्प्लॉई आर सेम. जो लॉ रहेंगे, जो लीगल इश्यूज रहेंगे, बोथ आर सेम फॉर ईच एंड कंपनी. ऐसा नहीं कि ये फूड प्रोड्यूस कंपनी है, ये सर्विस प्रोडक्टिंग कंपनी है, तो द थिंग आर डिफरेंट. नो, द ऑल थिंग आर सेम. Employer may be the representative by registered trade union, and employer by the register the union in employer. और उसके लिए वो ग्रुप यूनिटी बना सकते, एक ट्रेड यूनियन बना सकते, और उस यूनियन के अंदर वो वर्क एक्टिविटी बना सकते, जिससे हमें पता चले कि कौन से एक्टिविटी कहाँ चल रही है. देन डेफिनेशन, डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्शन. तो इंडस्ट्री एक्ट का जो सेक्शन है उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है. द टर्म इंडस्ट्री इज डिफाइंड एज द बिजनेस, ट्रेड, undertaking manufacturing or calling the employer, including calling service, employment, handicap, or industrial occupation. An industry exists only when there are the relationship between employer and employees, where the employer are engaged in business, trade undertaking, and manufacturing, and employer engaged the services, employment, handicap, and other. As per the Bangalore Water Supplies Swarg Board R. Rajapata, the terms industry has been given wide scope of judgment over the survivor earlier decisions. The court held first, क्या decision लिया था? Any activity will be industry if it is fulfill the triple test as under. First, systematic and organized activity. Second, with the cooperation between employer and employee. And third one is for the production and distribution goods and services. जो भी बिजनेस रहेगा एज अ ट्रेड एज इस इंडस्ट्री एक्ट के अंदर वो 3 बेस पे होने वाला है. कौन से 3 बेस है? फर्स्ट, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी. सेकेंड, सिस्टम विद इन द कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, यानी दोनों के बीच में, मालिक और नौकर के बीच में एक कॉपरेशन होना चाहिए, दोनों का रिलेशन होना चाहिए. तो रिलेशन इज बेस्ट. द फॉर प्रोडक्शन, the distribution of goods and services, whether not capital, has been investment by activity. It is immaterial whether or not there is profit motive, whether the not is there is capital. The characterable organization is trade business, which cannot be exempted from the scope of definition industry. Just because the eliminated of corporation triple test, domination nature test. या टेस्ट मध्ये काय असणार आहे? whether there the complex of activity, the test would be the pandemic nature in services, intellectual nature depend on the department, integrate industry it is work. Then the exemptions of to industry are casual activity, because of they are not systematic, employer, club of cooperation, operative research, labs, gurukuls, which have essentially employer characters. Single door lawyer taking the help form of clerk, because there are no organization of labor. Self characteristic activity. Okay. Then characterable industry institution. Which one characterable institution for your work? This falls into 3 categories. First, those yield profit, but profit are not used for noble purpose. एक कौन सी होती है? चैरिटेबल इंस्टीट्यूट. फर्स्ट, दोज yield profit, वो प्रॉफिट के लिए बनती है, बट प्रॉफिट इज नॉट यूज फॉर नॉबल पर्पस, किसी के भले के लिए यूज नहीं होगा, ऐसी होंगी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट. सेकेंड, दोज मेक नो प्रॉफिट बट हायर टू सर्विस एम्प्लॉई, वो प्रॉफिट नहीं करेंगे लेकिन एम्प्लॉइज को हायर करेंगे इन एनी अदर बिजनेस, बट the goods and services which are output made available at low or no cost for poor person. Then those are the oriented of human messengers, fulfillment of men who have worked not because they are the paid wages, but because of their share of passing to casual tradition. The first 2 categories of industry, but not they are the third selection. On the assumption they are the involves cooperation between employer and employee. पहले 2 है, उसमें क्या बोल सकते हैं? उसको हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं एज पर इंडस्ट्री लॉ. क्यों? पहले में प्रॉफिट की बात हो रही है और दूसरे में नॉट प्रॉफिट बट स्मॉल प्रॉफिट वर्क.
बड़ा प्रॉफिट नहीं, लेकिन प्रॉफिट की डिस्कस हो रहा है। ओके, और तीसरा में जो दोस्त, थर्ड में क्या बोला हुआ है, ओरिएंटेड ह्यूमन मिशन फुलफिल बाय द मैन हु वर्क। एक ह्यूमन मिशन रहेगा, एक सोशल मिशन रहेगा, जिसको हम एक दूसरे की मदद से पूरा करते हैं। इधर कैश बेनिफिट, खुद का फायदा नहीं दिखाते। As per the Bangalore Water Supply and Rajaputa's committee, the Supreme Court held the hospital facility as service hands its industry. उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हॉस्पिटल हॉस्पिटल फैसिलिटीज देना आर सर्विस एंड हैंस इंडस्ट्री। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो वो इंडस्ट्री में कैलकुलेट हो सकते हैं। दे आर वर्क अंडर द इंडस्ट्री लॉ। The government department, while the undertaking welfare activity cannot be said engage, discharge, survival function and the outside limit section 2. However, the Bangalore water supply case, it was held that in view of the infrastructure operation profession, thus the function cooperation between employer and employees is essential to the total quality of services. Term industry does not include it. अब इंडस्ट्री की टर्म है, ये कब कैलकुलेट नहीं होती कि ये इंडस्ट्री है, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। द एनी एग्रीकल्चर ऑपरेशन एक्सेप्ट वेदर द सच एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज कैरीड ऑन इन इंटीग्रेटेड मैनर विद अदर एक्टिविटीज सच एज अदर एक्टिविटी इज मोर सुपेरियर एंड डोमिनेंट। कोई भी एग्रीकल्चर वर्क, खेती बाड़ी के रिलेटेड जो कुछ भी काम होते हैं उसे वो लोग इंडस्ट्री नहीं बोल सकते। लाइक शुगर कैन शुगर फैक्ट्री, it is not an industry, just a factory under cooperative society. साकर सह संबंधित कारखाने, ओके, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी में काउंट होता है क्योंकि वो वेलफेयर के लिए होती है। किसके वेलफेयर? फार्मर वेलफेयर के लिए। बट इट इज प्रेजेंटेड इफ इट इज द हायर सुपेरियर गुड्स, फार्मिंग के सुपेरियर गुड्स बना रही है, देन इट इज इंडस्ट्री। लाइक मशीनरी बना रही है जिससे अच्छा फार्मिंग होगा एंड ऑल, देन इट इज फार्मिंग के काम क्या है, लेकिन वो इंडस्ट्री हो सकती है। Hospital is not an industry. Dispensaries is not an industry. They are the cooperative societies. Okay. Then education, scientific research organization which is providing the welfare of society are not industry. Khadi village industry. Any activity of government of dispatch department of the central government dealing with the different research atomic energy in space system. यानी जो गवर्नमेंट और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जनरेट किया जाएगा, ऑल थिंग आर नॉट इंडस्ट्री। एनी डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत एंड ऑल नॉट अ इंडस्ट्री। एनी एक्टिविटी बीइंग अ प्रोफेशन प्रैक्टिस इंडिविजुअल और अ बॉडी इंडिविजुअल, द नंबर ऑफ पर्सन इज नॉट अ सोसाइटी। Any activity when activity carried by the cooperative society, club and etc. is not industrial work. ओके, इन शॉर्ट इंडस्ट्री कोण कोणची नाही होंगी ह्याच्यावर आपण बोलूया। कुठलेही खादी कार्य, खादी काम, खादी कपड़ों के मिल या फिर खेतीबाड़ी के चीज़ें जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो बनती है, रिसर्च एक्टिविटी, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स बड़े से बड़ा रहे, छोटे से छोटा रहे, देन डिस्पेंसरी, स्मॉल इंडस्ट्री डिस्पेंसरी, देन किसी क्लब का ऑपरेशन कर, क्लब बनाना, ग्रुप एक्टिविटी और क्लब की होने वाली इंडस्ट्रियल वर्क, दे आर नॉट कैलकुलेटेड अंडर द बिजनेस बट नॉट इंडस्ट्रियल बिजनेस। उसको हम इंडस्ट्री टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज दे आर द वर्क अंडर द कोऑपरेशन। वो मेंबर्स बनाते हैं और काम करते हैं, तो मेंबर का कॉर्पोरेशन यहाँ रहता है। जहाँ मेंबर का कॉर्पोरेशन रहेगा वहाँ इंडस्ट्री नहीं बनेगी, जहाँ शेयर्स रहेंगे, शेयर मार्केट रहेगा, वहाँ पे इंडस्ट्री। इतने सब फर्क होता है। ओके, देन डिस्पैच ऑफ इंडस्ट्री, इस पॉइंट के ऊपर हम स्टडी करेंगे। इंडस्ट्री डिस्पैच मींस एनी डिस्पैच ऑफ डिफरेंट बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, or between the employer and workman, or between the workman and workman, which is the connected with employment or non-employment, or the terms are employment with the condition of labor or person. The definition have the 4 features. First, dispatch यानी खुलना और the different existing बाहर पढ़ने के तरीके। There are the parties, 2 are the dispatch, 2 parties होते हैं कौन से? It is the employer and this employee.
या एम्प्लॉयमेंट यानी काम दिया जाता है, या नॉन एम्प्लॉयमेंट सिर्फ हेल्प की जाती है. और द टर्म्स इज द डिस्पैच शुड बी रिलेटेड टू एन इंडस्ट्री. एक्सप्लेनेशन उसका वो देखो कैसा है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया है. They are the most existing real substance and the persistent difference between the parties which will be distribute industry piece. Dispatch must rise to workman against the employer. Mere demand to the government without the dispatch being raised cannot be called as industry dispatch. In order to bring the industrial dispatch, large group of workmen must be the range against to the employer. The dispatch must be raised by the workmen themselves or by the union. An individual dispatch is not industrial dispatch. It is not necessary to register the union. Unregistered union can be represented its member. In case where the workman was supported by an outside union, it was held it was not industry dispatch because union was not conducted by any company. Okay, then the point is workman. Workman काम करने वाला आदमी. Section 2B of Industry Act. Workman means a person employed in any industry to do any manual and skilled technical operation, clerical and supervisor work for higher reward. Whether the terms employment is expressed or implement purpose for the proceeding under this act, relationship and industry. इन शॉर्ट उसने क्या बोला भाई, कोई भी ऐसा इंसान जो काम करता है किसी भी तरीके का, फ्रॉम टू झाड़ू मारने से एज पर द टॉप लेवल एज अ सीईओ, कोई भी एक बंदा जो काम करता है, ऑल आर हियर वर्कमैन. आर द लॉक्स द वर्कमैन एक्चुअल दो हिस्सों में बांटे हुए. वन इज एम्प्लॉयर जो काम दिलाएगा एंड वन इज एम्प्लॉय. बट इन दोनों का जो कैलकुलेशन है, इट इज person employed in the industry do any manual skill techniques operation etc. Okay, yes, some question is there, who is the subject to they are the Force Act in 1950 to Navy Act 1957, or who is the employed in policy services or as a officer of or the employee of a person or not. Who is employed is mainly to marginal or administration capital. In short, the workman has three essential parts. First, statutory meaning of workman, legal fiction of and legal fiction and categories of person including. Explanation of workman. The first is to be considered as a workman, a person must be employed यानी काम करने वाला by the employer, जिसको employer ने रखा है, मालिक ने रखा है, of an industry, जो industry में रखा है. By and the contract employment which is the expense implied when the employer exert full control and supervisor over the employee. This exists master servant relationship. In case contract employment, there is no master service relationship. क्या बोला हुआ है वर्कमैन के बारे में उसने? वर्कमैन अ पर्सन, वो एक आदमी है. कौन है? वो एक ऐसा बंदा है जिसको एम्प्लॉयर रखा गया है, एज ए एम्प्लॉय रखा गया है. इन शॉर्ट इस डिस्कस में वो बताता है कि कौन होना चाहिए, और जिसे कौन रखने वाला है, एम्प्लॉयमेंट के शिप में एम्प्लॉयर रखेगा उसके हाथ के नीचे, और उसको सुपरवाइज किया जाएगा बाय सुपरवाइजर. अब जब सुपरवाइज किया जाएगा तो डायरेक्शन दिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन दिया जाएगा, उस कोऑर्डिनेशन के अंदर उसको काम करना है. A person will be workman only he is the employed in activity under the section 2 और J के अंडर जो एक्टिविटी इंडस्ट्री वाला लिखे हुए उसको फॉलो करेगा. इफ ही जैसे कि सेक्शन 2 a person employee to do not work in incidents the industry and also consider as to be workman. अब किसको हम वर्कमैन नहीं समझ सकते, उसने सेक्शन 2 के एस में लिखा है. फॉर एग्जांपल गार्डनर एंड वॉचमैन, क्योंकि ये इंडस्ट्री के मेन वर्क नहीं करते, वो प्रोडक्शन में हाथ नहीं बटाते, वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करने वाले, दे आर नॉट अ वर्कमैन. Are you getting? Then the appearance who has appointed under the Appreciation Act, who is paid stipend and not wages, is workman. This the destination of employee is not important nature for the work
done by the employee is not important. A teacher is not a workman. Why? The education institute is not a इंडस्ट्री. देखो ये साफ साफ बोला हुआ है, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, उधर के लोगों को हम वर्कमैन नहीं बोल सकते. इन शॉर्ट इस पॉइंट में हमें क्या उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि वर्कमैन कौन होता है. तो वर्कमैन द पर्सन वर्क इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में काम करने वाले को वर्कमैन बोला. अब वो वर्कमैन इंडस्ट्री में जो काम करता है तो उसको कौन रखता है? तो इंडस्ट्रियल पर्सन यानी ओनर रखता है. इसे हम एम्प्लॉयड बोलते हैं. एम्प्लॉयड एम्प्लॉय को लाता है. अब एम्प्लॉयड मस्ट भी उस जब लाएगा तो वो जो डिस्कस करने वाला है उन दोनों के बीच में जो एक्टिविटी होने वाली है, इट इज वर्कमैन ओनली इन द एम्प्लॉय एक्टिविटी. अ पर्सन एम्प्लॉयड डू नॉट वर्क इन द इंडस्ट्री और इंडस्ट्री आल्सो कंसीडर्ड टू बी द वर्कमैन अंडर सेक्शन. तो उसके अंदर उसने पहली बात बोला हुआ है, लेकिन उस इंडस्ट्री में अगर कोई गार्डनर है या वॉचमैन है उसको एम्प्लॉयर नहीं बोल सकते. द रीजन इज, या वर्कमैन नहीं बोल सकते. रीजन इज because they are not work for my industry, they work for the overall side work, जो किए ना किए चलने वाले. देन उसने फिर से बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले को हम वर्कमैन नहीं बोल सकते बिकॉज हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं किया है. तो इंडस्ट्री जो होंगी उधर काम करने वाले ही वर्कमैन होते हैं. इंडस्ट्री के आउट वाले को हम वर्कमैन नहीं बोल सकते. एग्जाम्पल टीचर. टीचर इज वर्क इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी टीचिंग बिल्डिंग. अंडरस्टैंड? ओके. Person doing the technical work in industry such as engineer, foreman, technical, medical offer charging as a workman. लेकिन देखो यहाँ बोला हुआ है कोई भी टेक्निकल वर्क बताने वाला, कोई भी हेल्प करने वाला, किसी भी तरह की जो इंडस्ट्री के इंजीनियर्स, फॉरमैन कोई भी हो, बड़े से बड़े अहदा रखने वाला, ऑल थिंग आर इंडस्ट्रियल वर्क. ओके. देन द स्किल सेक्शन स्ट्राइक एंड सेक्शन 2Q के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. लॉ है, लॉ को हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे. टुडे हमने क्या क्या देखे, तो जो हमने डिस्कस किए आज हमने जो ब्रीफली पॉइंट देखे. तो सबसे पहले इंडस्ट्री क्या होती है. इंडस्ट्री ऐसी जहाँ प्रोडक्शन होता है और वो प्रोडक्शन दो लोगों के बीच में की डील होती है. एक कौन होता है? द पर्सन इज एम्प्लॉयर और दूसरा इज एम्प्लॉय. ये दोनों के बीच में जो होने वाला रहता है और उनको हम क्या बोलते हैं? वर्कमैन्स बोलते हैं, यानी इंडस्ट्री में काम करने वाले. अब इनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने उसमें से पहला है डिमाकुची टी स्टेट 1956. यहाँ जो लिखा गया है उसमें उसके रिलेटिव किया था. उसमें क्या बोला हुआ है? एम्प्लॉय में बी रिप्रेजेंटेड बाय रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर के अंडर होते हैं, यानी कहा कितने काम करेंगे, कितने करेंगे, किसको क्या स्किल सैलरी देनी चाहिए, ये ट्रेड यूनियन के अंदर उनके रजिस्टर होता है. देन इंडस्ट्री सेक्शन 2J के अंदर उसने इंडस्ट्री को डिफाइन किया है. उसने क्या बोला? इंडस्ट्री इज अ सर्विस एम्प्लॉयमेंट हैंडक्राफ्टेड और इंडस्ट्री ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कमैन. लोगों से काम करा के लेने वाली वो बुनियादी चीज जहाँ पे लोग काम करते. ओके. ओनली व्हेन द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. हम जब तक इंडस्ट्री कब तक बोलेंगे? जब तक दोनों के काम करने का तरीका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होगा. अगर वो मेंबर है, पार्टनर बने तो पार्टनरशिप फर्म बन जाती है. ओके. देन बैंगलोर वेस्ट सप्लाई शेयर का कमेटी की डिस्कस की हमने. उसके अंदर जो बातें निकली जैसे कि एम्प्लॉयर कैसा होना चाहिए, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड इन एक्टिविटी, करना चाहिए कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. देन क्या कौन सी होती है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? उसमें से चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में भी इंडस्ट्री होती है. लाइक प्रॉफिट के लिए जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बनी होती है उनको हम इंडस्ट्री बोलेंगे. नॉट फॉर प्रॉफिट रहते हैं लेकिन एम्प्लॉयज वहाँ होते हैं तो उसे भी इंडस्ट्री बोलेंगे. बट मेंबर बन के, ग्रुप बन के काम करना और सिर्फ वेलफेयर करना इज दिस नॉट चैरिटेबल इंडस्ट्री. ओके. देन फिर से हमने डिस्कस की इंडस्ट्री डज नॉट इंक्लूडिंग क्या नहीं आ सकता है. तो एग्रीकल्चर कंसेप्ट जो है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम इंडस्ट्री नहीं बोल सकते. लाइक गेहूँ पीसना वगैरह ये जो चीज़ें हैं इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, आटा ओरिएंटेड वगैरह, दे आर नॉट. बट वही उनकी अगर कोई मशीनरी बना रहा है जिससे वो पीसा जाता है तो वो मशीनरी एग्रीकल्चर मशीन है बट इट इज इंडस्ट्रियल मेकर कि उससे वो मैक्सिमम प्रॉफिट, सुपेरियर प्रॉफिट निकालने वाला है तो उसको हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं. हॉस्पिटल इज नॉट अ टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री क्योंकि वो वेलफेयर सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है. एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेडिंग और इंस्टीट्यूट जहाँ पे वेलफेयर के काम कर किए जाते हैं और वेलफेयर करने वाले हैं सबको हम इंडस्ट्री
नहीं बोल सकते। देन खादी एंड विलेज, खादी इज कपड़ा बनाना इज नेशनल वर्क, खादी को नेशनलाइज क्लॉथ बोला जाता है। तो ऐसे जो सोसाइटी वेलफेयर के काम किए जाएंगे वो जहाँ किए जाएंगे दे आर नॉट एन इंडस्ट्री। एनी एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट डिस्पैच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर दे आर नॉट अ इंडस्ट्रियल वर्क। एनी एक्टिविटी बीइंग द प्रोफेशन इंडिविजुअल बाय बॉडी इंडिविजुअल, जैसे खुद से अगर वो कुछ छोटा डाला हुआ है और उसमें वो वेल्ड है, लाइक टीचर के क्लासेस, लॉयर की लॉयल्टी लीगल इश्यूज, डॉक्टर की डिस्पेंसरी, दे आर नॉट अ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों होने चाहिए। लॉयर की फीस मिलती है ना, एम्प्लॉयर रहता है ना एम्प्लॉय रहते हैं, दोनों को मिल के कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है। इंडस्ट्री डिस्पैच के अंदर क्या आता है, इसकी इन शॉर्ट हमने स्टडी किए। देन एक्सपेंडिशन कैसा होता है वो स्टडी किए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वर्कमैन क्या होता है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। वर्कमैन द मेजर द पर्सन एम्प्लॉयड एन इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल स्किल नॉन स्किल टेक्निकल, कोई भी छोटे से छोटा से बड़ा बंदा हर एक वर्कमैन होता है। बट अगर वो वर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा है लेकिन ओरिएंटेड वर्क नहीं है जो इंडस्ट्री से करना है तो उसे हम वर्कमैन नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल this act relation between industry dispatch, including such as person who has been dispatched, discharged, like गार्डनियर को हम वर्कमैन नहीं बोल सकते। उसके बाद वॉचमैन को हम इंडस्ट्रियल वर्सन वर्कमैन नहीं बोल सकते। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने इंडस्ट्री नहीं बोला हुआ है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर आने वाला वो भी वर्कमैन नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हमने जो स्टडी किया उसके सेक्शंस के नेक्स्ट लेक्चर से सेक्शन 2 की हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।